Hey Krishna, welcome to this YouTube channel and video for today. आज के वीडियो में we are going to talk about defense stock, which are the two defense stock that you can really select for a long-term play. Prior to that, we will first take a look at the technical outlook of the sector of what it has done previously. And lastly, I will, because I'm getting a lot of questions from members, that could you please explain in short, at least a brief overview on what should we do in portfolio sizing, because this becomes a big topic when it comes to managing a portfolio. So we'll cover these three topics in today's video. Standard disclaimer that this is only for educational purpose and not a stock recommendation advice, not a SEBI registered. Right. So the first stock is see in this company they are primarily having two different business segments. Okay, first one is defense, which is the core of their business, that is having 96% of their revenue coming from defense segment, and they also have a dairy plant. Okay, 4% just as a part of manufacturing extension that they have, but this is very minuscule, so we can ignore this. But the primary focus of our behind analyzing this company is because of this defense segment. When we talk about management is very strong. They are coming close to 20 to 25 years of experience. So strong management, wide experience in the defense sector. Okay, and they are also backed with good institutes and as well as different experience in many big companies such as L&T Defense from IIM Ahmedabad and accordingly. So good management overall. Management के ऊपर काफी हम rely कर सकते हैं over here. Clientele के ऊपर बात करें तो clientele is also very strong, such as Cochin Shipyard, Indian Navy. इंडियन नेवी के लिए इन्होंने सबसे पहले एक बल्ब है जो शिपॉल में यूज होता है, जिसकी डिटेल्स हम आगे बात करेंगे. सो दे वर द फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस दैट बल्ब फॉर द इंडियन नेवी, जो कि आज भी यूज होता है. एंड देन हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T, डिफेंस, DRDO organizations. So these are very powerful organizations who are buying from these companies. So one thing एक इससे अंडरस्टैंड आ जाता है कि जो सेफ्टी नेट किसी इन्वेस्टर को चाहिए रहता है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि सेफ है, हमारे पैसे जीरो ना हो. ओके, सो दैट विल नॉट हैपन इन दिस कंपनी बिकॉज दे आर बैक्ड विद स्ट्रॉन्ग नेम्स एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम. प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें तो प्रोडक्ट्स को तीन पार्ट्स में देख सकते हैं. ओके, इसमें से ये दोनों पार्ट इतने रेलेवेंट नहीं है बट इतने रेलेवेंट नहीं है, बट मेन फोकस जो है ना वो यहाँ पे हल कंस्ट्रक्शन में जो इनके शिप बल्ब लगते हैं. ओके, अब ये प्रोडक्ट क्या है, क्या करते हैं, टेक्निकल डिटेल्स में हम एज एन इन्वेस्टर्स आप चाहते हो तो जा सकते हो. ओके, बट देन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन कैपेसिटी फॉर द बिजनेस और क्या ग्रोथ आने वाला है इसमें. ओके, सो मेन ये तीन सेगमेंट्स है. सी ये जो शिप बल्ब है ना, ये एक शिप में यूज होता है इन हल कंस्ट्रक्शन. ओके, जो कि नेवल बिजनेस में होता है, नेवी शिप्स में होता है. अब वॉरशिप्स जो है इंडिया के पास करंटली, ये डेटा देखो, इंडिया के पास, इंडियन नेवी के पास 132 वॉरशिप है. बट ग्रोथ प्लान है कि बाय 2035 वॉरशिप कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना इज अ बिग थिंग. ओके, और बाय 2035 इंडिया का टारगेट है दैट इंडिया रीचेस टू 175. ओके, सो दिस इज अ ग्रोथ दैट इंडिया विल सी, और जिसका बेनिफिट जो है वो इस कंपनी को डायरेक्टली होगा. टारगेट तो एक्चुअली 200 का है, बट एटलीस्ट 200 ना हो पाए तो एटलीस्ट 175, 175 भी ना हो पाए तो 160, 170 भी हो गया तो भी दिस कंपनी विल सी अ गुड ग्रोथ बिकॉज ऑफ, अभी ये क्लियर प्रोजेक्शन प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का फॉर दिस वॉरशिप्स बिकॉज ऑफ रिसेंट इंडो पाकिस्तान. वी हैव गॉट मेनी फैंसी नेबर्स, राइट, पाकिस्तान, Bangladesh and many others as well. So because of many of those regional conflicts, India is also effectively focusing and growing their defense portfolio. Management का वर्डिंग है that they are aiming for a 30 to 40% CAGR. This is little on a higher side, but I am seeing that at least 20 to 25% of CAGR they should be able to do, looking at what they have done in the previous coming years. अब इनफैक्ट लास्ट ईयर में तो इसके काफी बम्पर ग्रोथ है. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो क्विकली, बट ओवरऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस है ऑफ 30 to 40% CAGR. ऑर्डर बुक जो है, ऑर्डर बुक लुक्स हेल्दी. ऑर्डर बुक्स, दिस ऑर्डर बुक गिव्स अस अ गारंटी कि करंटली अभी का जो ऑर्डर बुक्स है दैट इज इन अ वे अश्योरिंग अस दैट they are safe on the revenue part at least for next 12 to 15 months. Okay, we can say that. So you can see this over here. Their current order books is 1.4 times of their current revenue. So whatever FY24 का जो इनका रेवेन्यू आया है, ओके, 1900 करोड़ के आसपास का कुछ है अप्रोक्सीमेटली.
तो 1.4 टाइम्स ऑफ दैट मतलब इजीली 2300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक इनके पास है. सो दैट इज अ सेफ साइड कि इतना रेवेन्यू तो मिनिमम आएगा. सो वॉट एवर वैल्यूएशन दैट द कंपनी इज गेटिंग नाउ, उतनी वैल्यूएशन तो मिलेगी मिलेगी. तो एक अश्योरिटी हो जाती है कि पैसा डूबने वाला नहीं है. Money will be safe in this particular stock. It's just a wait and watch story, and it is a long story to go. Okay, not just for next 1 year. Why I'm saying this, I will explain you here. So if you look at this income statement also, see, this company is a growing company. The management has a very strong vision. Okay, so if you read into their management con calls and management discussion annual report, maybe आप देखोगे MDA, you will understand that they have a strong vision for next 5, 6, 7 years down the line, and that's where that vision can be reflected in the growth, in the capacity expansion that they have done. So if you look at this income statement, one of this income statement is depreciation. So what is depreciation? Depreciation का मीनिंग होता है कि किसी भी एसेट के ऊपर ओके उसकी वैल्यू जो है उसे मान लो 10 करोड़ का एसेट है. सो एवरी मंथ आई एम गोइंग टू डेप्रिशिएट 20 लाख रुपीज. ओके, तो एसेट का डेप्रिसिएशन जो है मंथ ऑन मंथ एवरी मंथ 20 लाख ऐसे फॉर नेक्स्ट 5, 7, 8, 10 ईयर्स के लिए होगा. सो ये अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू किसी दिन हम अपने इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं कि डेप्रिसिएशन बढ़ गया, दैट मीन्स ये बिजनेस में एसेट आया है. अब एसेट है तो ही पैसा आ पाएगा, इनकम आ पाएगा. इट्स सिंपल कोरिलेशन, राइट? So we can see this over here in the second half of last to last year, they had 11.6 million of depreciation, which has gone to close to 15 million. So this is a 50, almost 40% rise in the depreciation cost, which indicate that they have acquired more assets, they have built up on their more assets, they have built up on their capacity. So that is a strong signal and the indication कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर डेप्रिसिएशन आया. तो इस ईयर का जो एसेट ऐड हुआ है इस 2024 से लेकर 2025 इस फाइनेंशियल ईयर में, उस एसेट की वैल्यू अभी आने वाले ईयर्स में अनलॉक होगी, लाइक 2026-27. सो यही वेट एंड वॉच है इस कंपनी में. बैलेंस शीट में भी अगर हम देखेंगे तो इक्विटी पोर्टफोलियो में शेयर कैपिटल जो है 2023 के जो वैल्यू था शेयर होल्डर का, उसमें वो 114 से बढ़कर 140 हुआ है. सी इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हेन वी से व्हेन अ प्रमोटर इज बाइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई ही बाइज. द व्हाई इज इंपॉर्टेंट. व्हाई एनी प्रमोटर बाइज, ही बाइज. सी वेन एवर प्रमोटर सेल्स, उसके पहले मैं आपको ये बनाता हूँ. प्रमोटर कैन सेल फॉर एनी रीजन. काफी बार मैंने कंपनी में देखा है प्रमोटर सेल्स टू बाय अ न्यू हाउस. ओके, दे वांट टू एक्वायर अ न्यू लैंड. Okay, they want to say be a director of another company, so they want to acquire or they want to do any startup investing. So there can be many reasons for any particular promoter to sell. Okay, but when promoter has to buy, okay, there is only one reason why promoter sees the growth in the company. Right? वो अपने पैसे लगा रहे हैं, so for him his money is the most important. Otherwise वो इतना हेडेक क्यों ले बिजनेस चलाने का. So अगर वो हेडेक ले रहा है और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, so that means there is a growth that particular promoter is seeing in this company. Now, ये बल्ब का बार्स के ऊपर मैं बात कर रहा था ऑफ देयर इंस्टॉल कैपेसिटी. अभी इसमें ना एक समझना है कि करंटली मैनेजमेंट ने काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है फॉर बल्ब बार. सी बल्ब बार जो है ना ये इनका 50%, ऑलमोस्ट 50 to 55% ऑफ देयर रेवेन्यू ओके बल्ब बार से आता है, जो कि नेवी शिप्स में लगता है. अब इनका करंटली कहना है मैनेजमेंट का, दे आर लुकिंग क्लोज टू 350 to 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी 350 to 400. इट इज वेरी कंजर्वेटिव. मैनेजमेंट को जब भी पूछा गया कि ये इतना कंजर्वेटिव गाइडेंस क्यों दे रहे, उन्होंने क्लियरली कहा कि आई कांट रिवील दोज दैट देर आर, बिकॉज एज एंड व्हेन यू हैव द ऑर्डर्स कमिंग इन यू हैव टू टेक अ नोट फ्रॉम द CAGR ग्रोथ. सो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा CAGR ग्रोथ इन्होंने क्या बताया था, 30 to 40% CAGR ग्रोथ. सो मैनेजमेंट इज इनडायरेक्टली हिंटिंग ओवर हियर दैट ये नंबर तो मैं ऑफिशियली डिस्क्लोज कर रहा हूँ बट दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव नंबर. सो अगर मान लो ये नंबर जाकर 700, 800 भी हो जाता है, ओके, विच आई थिंक इट विल बी मोर देन 1000, 2000 रेशो, बट लेकिन 1000, 1200, 1300 के आसपास भी जा सकता है. बट अगर 800 भी जाता है तो अगर ये 50% है तो इसका टू मतलब एटलीस्ट 1600 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, राइट? तो अगर ये लोग उस कंजर्वेशन से ये लोग दे रहे हैं विद 30-40% CAGR ऑन टॉप ऑफ दैट. सो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट किस टाइप के इनसाइट्स हमें इनडायरेक्टली मेंशन कर. ओके, ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन था विच आई रियली लाइक, विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑन द रेवेन्यू. सी
मैनेजमेंट ने एक क्लियरली बताया कि इनका FY24 का जो रेवेन्यू, FY25 का जो रेवेन्यू है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू एवरी हाफ ऑफ 2024। मैं आपको ये यहाँ पे बताता हूँ। एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू था 1000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा। अब ये 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है, हर मतलब फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 940 करोड़ कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट जो एनुअल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे जो एनुअल रेवेन्यू है 1000 करोड़ का, ओके, यहाँ पे फिर से सेकेंड हाफ में किया। मतलब एवरी 6 मंथ, ये मतलब इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि इन एवरी 6 मंथ, ओके, वॉट एवर देयर full year revenue was, they have got that in every 6 months itself. So that says ki management is quite aggressive in terms of achieving their numbers and growing their numbers. So very likely that the 30-40% CAGR which they have mentioned, they would be able to easily achieve that too. Now, if you read through this further carefully, that this is without doing any major expansion. Okay, this number of 2024 that they have achieved, that is almost that is the equivalent of that they have achieved in both the half. This one over here is without any expansion, and currently we have seen in 2025 there is a depreciation increase over here. So we can easily expect a good runway for this company in next 2 to 3 years or so. कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस। ओके, एज यू नो मैं टेक्नो फंड एनालिसिस करता हूँ, नॉट जस्ट टेक्निकल एनालिसिस। सो फंडामेंटली अगर देखें तो स्टॉक एक काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में। मैं जनरली वीकली चार्ट्स देखता हूँ इन कंपनीज के लिए, ओके, बिकॉज ये ट्रेडिंग बेट्स नहीं, ये सब इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आपको करना, आप करना चाहते हो तो इसके लिए आप देखो स्टॉक जो है वो इस रेंज के अंदर ही एक कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक ब्रेकडाउन था जो कि फॉल्स प्रूव हुआ है, and then price is again up and price is consolidating. So this, for me, this would be a best point to buy between 644, 627. Um, but that's the technical analysis of this stock. All right. So let us move ahead to second stock. Before that, just guys, if you, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये इनसाइट पसंद आया, तो कमेंट में लिखना yes, 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 because उससे I will get an idea, okay, you have liked the video. Okay, so do subscribe for many such insightful informations. So comment में yes करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। okay, alright. Second stock is a straightforward, ये कहते हैं ना कि investing requires common sense. This is the type of stock which requires a common sense. See, understand, Hindustan Aeronautic is expecting an order book of 2.5 lakh crore. Okay, ये उनको ऑर्डर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी भी करंटली इनके पास कुछ अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक हुआ था। ओके, बट 2.5 लाख इज अ मेजर जंप फ्रॉम दिस 1.8 लाख। ओके, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर बुक। नाउ इफ वी कंपेयर दिस न्यू ऑर्डर बुक विच दे आर एक्सपेक्टिंग टू द एंटायर मार्केट कैप, सी मार्केट कैप अगर देखें हम HAL का, अगर जाकर आपको HAL को पूरी तरह से खरीदना है, ओके, देन यू हैव टू पे 3,35,000 करोड़। So almost 80 to 90% of the market cap का equivalent इनके पास ऑर्डर बुक आने वाला है। ओके, सो यू कैन इमेजिन व्हाट दिस कंपनी विल डू इन नेक्स्ट 5 to 6 years। बट ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। ओके, इसमें अगर आप चाहते हो तो, सो दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस प्ले। किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 years के होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना है, देर इज नो बिग ब्रेनर इन दिस। Further details to show over here. So if you look at this particular stock, there is a strong operating leverage which happens in this company. Okay, if you see how we see that, if you see this over sales year, if we last 10 years, 5 years, 3 years का देख ले, example 3 years के factor करें, तो 3 years में इनका जो sales रहा है, okay, that has grown at a CAGR of 8%. So कोई मान लो example any company who is making 100 crore as a sales, और ये 10% से बढ़ती है, एग्जाम्पल इजी के लिए, इजी कैलकुलेशंस के लिए लेते हैं, तो ये अगले साल 110 करेगी, और उसके अगले साल 121 करेगी, और उसके अगले साल प्रोपोर्शनेटली 142, 143 जो भी आए। तो जनरली अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी का सेम रहेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन सेम रहेगा, सो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म पोर्शन से जाएगा, या फिर थोड़ा सा बढ़ सकता है। अगर रेवेन्यू 10% से बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये 10 की जगह पे 11 या 12% से बढ़ सकता है। बट ये इसके साथ ये नहीं हुआ है।
आप देखो यहाँ पे लिटिल डिफरेंट है, एस्पेक्ट यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जहाँ पे रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 8% से ग्रो हुआ है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कंप्लीट 18% से हुआ है। सो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे प्ले हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन इज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट दे हैव ट्राई टू मेंटेन। एज यू कैन सी ओवर हियर देयर ऑपरेटिंग मार्जिन हैज improved from a general average of 18, 19, 20, 22, 23 परसेंटेज यहाँ से ये डायरेक्टली यहाँ पे 32, 31% पे हुआ है. So now they have cracked the code as to how they have to optimize their business and the execution of their business by which the operating margin remains at a higher level of 32, 33%. Because अगर ये नीचे जाना चले जाएगा तो मार्केट विल, क्योंकि एक बार बेंचमार्क सेट कर दिया ना, so company tries to maintain that benchmark of 32, 33% operating leverage. बट रिलेटिवली हम देखिए स्टॉक प्राइस क्या होता है, सी दिस इज द कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. व्हेन द रेवेन्यू ग्रोज एंड देन मार्जिन ऑल्सो ग्रोज फर्दर विच इज एट अ हायर स्पीड देन रेवेन्यू, स्टॉक प्राइस जो है दैट गिव्स अ कंपाउंडेड रिटर्न. ये 74% एनुअल रिटर्न है. बैंक आपको 7.4% दे देगी, बट ये स्टॉक ने 74% का एनुअली कैगार रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में. सो इसलिए कभी भी आप मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ते हो ना, ये कॉन्सेप्ट आई विल टीच यू एज अ लर्निंग. सो देर इज अ रेवेन्यू and then there is a margin. These are the two things in long run which matters. रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे भी कई ज्यादा स्पीड से मार्जिन बढ़ना चाहिए. ओके, सो अगर ये दोनों ही हो रहा है, देर इज अ रेवेन्यू ग्रोइंग एंड देर इज अ मार्जिन ग्रोइंग ना, द स्टॉक इज द मल्टीबैगर स्टॉक. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड एंड पिक सम स्टॉक्स. अब इसमें व्हाट वी नीड टू नो इज एज अ रेवेन्यू मिक्स ऑफ HAL, HAL का मैक्सिमम ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम these two segments, repairs and overalls, okay, and spares. So this is approximately mota mota 71, 72 percentage of their revenue. Okay, so the more and more orders they get, more and more spares they will supply, and more repair work and maintenance work that they will deliver. Okay, so this is like जितने ऑर्डर्स आएंगे ये उतना ही हाँ वैल्यू बढ़ते रहेगा और उनका रेवेन्यू भी बढ़ते रहेगा उसके अगेंस्ट. So currently order book जो है that has been improved to 1 approximately 1.89 1,89,000 crore year. Okay, from the previous 94,000 crore, which is a good thing. In a year they have seen almost 70-80% of rise in the order book. और currently जो pipeline है expected order book है that is 2.25 lakh crore. So that is again almost 60 40-50,000 addition on top of what previously existed. इसका इसके कारण जो स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर्स में जो रेवेन्यू आएगा वो तो आएगा ही, ये एडिशनल जो ऑर्डर बुक आएगा उसके कारण भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्ले. Why I again say is because you can see over here the promoter themselves say that they go with a backlog of 6 to 7 years because they know this order execution takes time. So if you are someone, अगर आपके पास कुछ भी दो तीन ऑप्शंस है हमारे पास मार्केट में, तो फिक्स डिपॉजिट्स है और जनरल दो तीन ऑप्शन है जो 7 to 8% का रिटर्न देती है, राइट. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू जस्ट ब्लाइंडली अलोकेट सम मनी to any stock, so this can be one of those stock you can just invest and forget this stock for a good run up. Okay, so this stock name is as I said, it is HAL. um, stock has given a bumpy ride in the past. Okay, what we have to understand is, see this correction जो आया था ना HAL में, okay, this correction we have to see it from a very different lens. See, this recovery is not a U-shaped recovery, this is a V-shaped recovery. Okay, now when we say V-shaped recovery, you have to understand one technical concept. ये again मैंने technical course में किया था. So if you are interested on this technical course, do put TA so that I can understand how many people are interested, and then accordingly I can give the link of that course in the description going forward in the videos, because I paused it for a while. I was making some more amendments to it, but now I'm done. But देखते हैं, I will because I want to add some more videos to it. So if you are interested, at least just let me know by writing TA in the comment. I will understand that you are interested, and then I will quickly expedite on that. So V-shape recovery. Okay, coming back. V-shape recovery जो है ना, what does V-shape recovery आता है? See, technicals में ना एक concept है which hardly people teach. Okay, when there is a U-shape recovery, yes, it is a consolidation. Not a consolidation, it is an like a recovery. But ये जो है ये accumulation जो है ना, इसको ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन बोलते हैं. ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेशन, रियल एक्यूमुलेशन मतलब ये स्टॉक्स लोगों ने जो खरीदा है वो इस रेंज में खरीदा है, फ्रॉम दिस पॉइंट और मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, इस रेंज में. बट जो वी शेप रिकवरी होता है ना, वी शेप रिकवरी में ये जो फॉल आता है ना, ये पर्पसली फॉल आया जाता है.
this is on purpose because when the stock comes down on purpose and then immediately recovers. अब मुझे बताओ HAL में इस पॉइंट पे जो नवंबर दिसंबर का पीरियड रहेगा वहां से लेकर अब तक क्या 5 to 6 मंथ्स में कंपनी ने कुछ बड़ा 2 क्वार्टर में कुछ बड़ा चेंज हो गया क्या कि कंपनी में कंपनी को जो जो स्टॉक है वो 30% से नीचे गिरा और फिर 30% रिकवर हो गया है? नहीं, ये फॉल नहीं था, ये एक्यूमुलेशन था. ओके, सो दैट्स हाउ वी शिफ्ट रिकवरी इज टू बी लुक्ड एट, दैट दिस वाज नॉट अ फॉल. यस, मार्केट फॉल के कारण ये फॉल हुआ है, बट डेफिनेटली दिस इज अ मच स्ट्रॉन्गर एक्यूमुलेशन. ओके, अगर इसमें अगर पोटेंशियल ही नहीं होता ना तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता और फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता. सो दिस एक्यूमुलेशन शोज कि इन्वेस्टर्स आर वेरी डेस्परेट इन हैविंग दिस स्टॉक बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ग्रोथ रनवे. Alright. So coming to our concept for today, that is 5% diversification. See, 5% ये अगर ये preliminary concept मैं आपको explain करूंगा portfolio diversification का. अगर आप portfolio diversification के ऊपर अगर कुछ चाहते हो तो again अगर आपको इसमें interest है portfolio diversification में तो write PD in the comment. I will at least get an indication that you are interested in this video and then I can make a separate video dedicated to it because this can be a long topic on its own. It can take easily 2-3 hours. So देखते हैं इसको अगर हम कैसे मैं deliver कर पाऊँ. बट बेसिक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपीज है ना इन्वेस्ट करने के लिए. सो एंश्योर एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल और एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना दैट यू पुट मैक्सिमम ऑफ 5% इन योर पोर्टफोलियो. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस, इसके कारण दो चीजें होती है. फर्स्ट इज यू आर एबल टू टेक हाई रिस्क. ओके. सेकेंड इज यू आर एबल टू प्ले विथ वोलेटिलिटी. So when I say you are able to take high risk, so see क्या होगा, मैक्सिमम 5% किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और ऐसी भी कोई फालतू कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे बट किसी कंपनी में मान लो आपने इन्वेस्ट भी किया, दिस गोज टू जीरो. हाउ मच डू यू मैक्सिमम लूज ऑन योर पोर्टफोलियो इज मैक्स टू मैक्स 5% एंड नॉट ऑल द स्टॉक्स विल गो दिस वे, राइट? बट इमेजिन this 5 over here goes to 4x. So this 5 becomes 20x. Sorry, 20 rupees, 20,000. Now what, how much is this 20,000? आपने आपको प्रॉफिट क्या है इसमें? 15,000 का है. सो हाउ मच इज दिस 50,000 ऑफ योर पोर्टफोलियो? दैट इज इक्विवेलेंट टू 15%. मतलब आपका 15% ऑफ द पोर्टफोलियो इज रिकवर्ड बाय जस्ट दिस वन सिंगल कंपनी गिविंग यू दैट 15,000 रुपीज प्रॉफिट. ओके. सो 5% डाइवर्सिफिकेशन का रूल जनरली बड़े बड़े hedge fund managers and big investors also follow, that they put only maximum of 5% in a particular stock. Again, there are different processes and operations किस तरह से हम पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते हैं फ्रॉम सीड टू ग्रोथ टू कोर टू हाउ वी रियली टेक आवर स्टॉक along the way as per the clarity of the company. But generally that's the rule followed. All right, thank you so much guys for watching. That's all about this video. See you in the next video. Bye bye.